میرے پیارے دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام سے سرفراز فرمایا ہے۔ دین اسلام ہمیں عطا کیا اپنے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت کو اور ہر امت کو اس کے نبی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کی، اپنی شریعت کی تعلیمات پہنچائی۔ اور اس بات کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ دین اسلام ایک ایسا دین ہے، ایک ایسی شریعت ہے جو بڑا ہی اوتھینٹک ہے، اور اس کی اوتھینٹسٹی کا اس بات سے ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے، یا ہم اس پر اس لیے یقین اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ اس کی ہر بات جو بھی ہے، جس کی بھی تعلیم ہے کسی کام کی کرنے کی یا کسی کام سے رکنے کی، وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی طرف سے نہیں۔ اللہ کی طرف سے یا تو اس میں تعلیمات موجود ہیں، اور اللہ کی ہی طرف سے نزول کردہ وحی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حدیث کی شکل میں آتی تھی، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتا دیا، یہ کام کرنے ہیں اور یہ کام نہیں کرنے ہیں۔ تو اس دین اسلام کی شریعت کی اوتھینٹسٹی کا یا اس کی اس حوالے سے جو اس کی قابلیت ہے، اس بات سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس دین کی ہر تعلیم صرف اور صرف ہمیں جو اپنانے کا حکم دیا گیا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی طرف سے نہیں۔ تو اس کے اندر کسی بھی قسم کی کمی کوتاہی کے جو کوئی چانسز اگر موجود تھے بھی، وہ سب ختم ہو گئے، کیونکہ اس کے اندر کسی ایسے انسان کی، کسی ایسے شخص کی کوئی تعلیم موجود نہیں ہے جو معصوم عن الخطا نہ ہو، کیونکہ اللہ کے رسول تو معصوم عن الخطا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو غلطی سے پاک رکھا ہے، تو اللہ کے رسول کی طرف سے یہ آیا ہوا دین جو ہم تک پہنچا ہے، ان کے صحابہ کے ذریعے، پھر اسلاف کے ذریعے جو اوتھینٹک لوگ تھے، تو انہی کے ذریعے یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ تو اس کے اندر کسی بھی قسم کی کمی اور کوئی کوتاہی نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہماری طرف آیا۔ تو جب ہم اس بات کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ جو دین ہے، اگر ہم نے اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنا ہے تو ہمیں صرف اور صرف وہی بات اپنانی ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائی ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور کی بتائی ہوئی بات جو ان تک نہیں پہنچتی، یا جس میں ان کی مہر نہیں، ان کی مہر جو ہے صادق ہونے کی یا اس کے صحیح ہونے کی نہیں موجود ہے، اس پر عمل کرنا انسان کے لیے بربادی کا باعث تو بن سکتا ہے، لیکن اس کے لیے نجات کا ذریعہ وہ نہیں بن سکتا ہے۔ اس بات کا ہمیں اندازہ ہے، یہ ہمارے لیے یقین کی بات ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے جو اچھا، آئیڈیل اور صحیح اور ایک ہی نمونہ ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کی زبان، ان کے بتائے ہوئے اعمال، وہ سارا کا سارا جو ہے وہ تمہارے لیے ایک نمونہ ہے۔ اگر تم دین اسلام پر عمل کرنا چاہتے ہو، شریعت پر عمل کرنا چاہتے ہو، تو ان کی بتائی ہوئی ساری باتوں پر عمل کر جاؤ، اور جس سے انہوں نے روکا ہے اس سے رک جاؤ۔ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، جس سے تمہارا رسول تمہیں جس کا حکم دے اس کو کرو، اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ جس نے اس رستے پر اپنے آپ کو چلا لیا، اس نے دین اسلام پر عمل کر لیا اور اپنے آپ کو کامیابی کے رستے پر چلا لیا۔ اس کے علاوہ جو لوگ ادھر ادھر دیکھتے ہیں، دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں، اپنے بڑے ایسے جو معصوم عن الخطا نہیں ہیں، جن میں غلطی اور کمی کوتاہی کے جو امکانات موجود ہیں، اگر ہم ان کی طرف دیکھ کر اپنے دین پر عمل کریں گے، اپنی عبادات کو اپنائیں گے، یا اپنی مرضی کی چیزیں ان کے کہنے پر بنائیں گے، تو وہ دین اسلام نہیں ہے، شریعت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ چاہے کتنا ہی نیکی کا کام نظر آنے والا ہو ظاہری طور پر، یا اس کے پیچھے کتنی ہی اچھی نیت ہو، وہ جب تک اس پر اللہ اور اس کے رسول کی مہر ثابت نہیں ہوگی، وہ کام قابل قبول نہیں ہوگا، وہ کبھی بھی کام اللہ کے ہاں حیثیت نہیں رکھتا ہوگا، قبولیت نہیں رکھتا ہوگا، کیونکہ اللہ کے ہاں قبولیت صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات کی ہے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے جو بہترین نمونہ ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سب کچھ ایک تمہید بیان کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے، جو آج اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر اتنے رسم و رواج یا اتنی بدعات اور خرافات ہر مہینے کے ساتھ، ہر دن کے ساتھ، ہر رات کے ساتھ ہم نے کوئی نہ کوئی بدعت، کوئی نہ کوئی ایسی خرافات جوڑ رکھی ہوتی ہیں جس کا دین اسلام سے تعلق نہیں ہوتا، اور اس کو ہم نیکی کی بنیاد پر کرتے چلے جاتے ہیں اور سمجھتے ایسے ہیں کہ ہم بڑا دین کا کام کر رہے ہیں، بڑے اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ایسا نہیں ہوتا۔ وہ ہماری جہالت ہوتی ہے کہ ہم اس بات کو پرکھتے نہیں ہیں کیا یہ شریعت کا واقعی عمل ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے تو ہمارے لیے فبیہا، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر اس پر شریعت کی مہر نہیں ہے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرما دیا ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ
मुहर्रमत, वो बात जिस पर अल्लाह उसके रसूल की मोहर ना हो, फरमाया कि वो काम रद्द है। जितना मर्जी ज़ाहिरी तौर पर नेकी वाला नजर आता हो, ज़ाहिरी तौर पर जितना मर्जी अच्छा काम नजर आता हो, वो अल्लाह और उसके रसूल के यहाँ काबिल कबूल नहीं। तो मेरे भाइयों, ये शाबान का महीना जो हमारे यहाँ चल रहा है और कुछ ही दिनों बाद जो 15 शाबान आने वाली है हमारे माशरे के अंदर, उसके साथ बड़ी ही बिदअत, बड़ी खराफात और बड़ी गुमराहियां जुड़ी हुई है जो हमारे माशरे के अंदर नमूदार होती है। ऐसे ऐसे लोग वो सर अंजाम देते हैं जो सही सुन्नत की चीजें हैं उनको छोड़े हुए होते हैं, लेकिन कोई ऐसी बिदअत की चीज आ जाए, ऐसे बिदअत और खराफात वाले अय्याम आ जाए तो इस पर बड़ा भरपूर तरीके से वो अपना हिस्सा डालते हैं और इस काम को बड़ा लोगों तक फैलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हकीकत ऐसे है कि शरीयत में ऐसे दिनों की या इन दिनों की जिसकी खास अय्याम हमारे माशरे के अंदर बिदअत के नाम पर बनाए जाते हैं, वो उनका कोई जिक्र मौजूद नहीं है, कोई सही हदीस, कोई ऐसी बात अल्लाह और उसके रसूल का फरमान मौजूद नहीं है जो हमें इस बात का हुक्म देता हो कि हम ये शाबान के महीने में कुछ अय्याम को खास तौर पर निस्फ शाबान 15वीं रात को ऐसी रात बना ले, ऐसी खास रात बनाए जिसमें हम सारी रात इबादतें करते रहें, खास उस रात के साथ जोड़कर, और इस रात में खास ऐसी नमाजें पढ़े जो खास इसके साथ उन्होंने जोड़ रखी है, मुनासबत बना रखी है। शरीयत ने हमें इस बात का कहीं पर भी हुक्म नहीं दिया है। तो ये शाबान का महीना, सबसे पहले तो इसके अंदर कुछ नुकात हैं, उनको समझ लीजिए। पहला नुक्ता शाबान के महीने के हवाले से ये है कि शाबान के महीने की फजीलत है, लेकिन वो पूरे महीने की है और वो सिर्फ और सिर्फ रमजान के साथ होने की वजह से है। और ये फजीलत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने के अंदर रमजान के बाद सबसे ज्यादा इस महीने में रोजा रखा करते थे, वो शाबान का महीना था। ये फजीलत इस महीने की मौजूद है क्योंकि ये रिवायत हमें बुखारी मुस्लिम के अंदर मिलती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया जाता है कि लम यकुन नबिय्यु यसूमु शहरन अक्सर मिन शाबान, कि कोई भी महीना ऐसा नहीं था जिसके अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा रोजा रखते हो, रमजान के बाद वो शाबान का महीना था। यानी कि इसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से रोजे रखा करते थे। इसी तरीके से दूसरी एक रिवायत के अंदर आता है कि मा रअयतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसूमु शहरैन मुतताबिअैन इल्ला शाबान व रमजान, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दो महीनों के मुसलसल रोजे रखा करते थे, यानी शाबान के भी और रमजान के भी। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही अहादीस से, बुखारी मुस्लिम जो सबसे ऑथेंटिक किताबें हैं उनसे ये रिवायत हमें मिलती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे महीने के अंदर रोजे सबसे ज्यादा शाबान के महीने में रखा करते थे। ये एक फजीलत इस महीने की मौजूद है। दूसरा नुक्ता इस महीने के अंदर जो मौजूद है वो ये है कि निस्फ शाबान के बाद रोजे ना रखना, इसका भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है। वो क्या है? फरमाया इज़ा बक़िया निस्फु मिन शाबान फला तसूमू, जब 15 दिन शाबान के गुजर जाए और 15 दिन आखिरी रह जाए तो उसके बाद रोजे मत रखा करो। और इसके अंदर असलाफ ने, मुहद्दिसीन ने जो वजूहात जिक्र फरमाई है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे खुद रखा करते थे और सबसे ज्यादा रखा करते थे। वजह ये थी, इससे रमजान से पहले शाबान के आखिरी 15 दिनों में रोजा रखने से अल्लाह के रसूल ने क्यों मना फरमाया दूसरी हदीस के अंदर कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम रमजान का अच्छे से इस्तेमाल कर सको, यानी कि तुम चुस्त रहो, यानी कि तुम तवाना रहो, रमजान रोजे रख कर शाबान के तुम्हारे अंदर ऐसी कमजोरी ना आ जाए कि तुम रमजान के जो फर्जी रोजे हैं वो रखने के काबिल ना रहो। तो इसके अलावा जो शख्स रमजान जो शाबान के रोजे रख कर अपने अंदर कमजोरी महसूस करता हो, उसके लिए ये हुक्म है कि वो 15 शाबान के बाद रोजे ना रखे। लेकिन जो रख सकता हो, इस्तिताअत हो, ताकत ऐसी हो कि वो अपने आप को कमजोरी महसूस ना करता हो और रमजान का इस्तेमाल करने के लिए वो अपने आप को चुस्त और तवाना रख सकता हो, तो उसके लिए ये मुमानियत नहीं है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद रखते रहे हैं। और इसी के अलावा जो शख्स जो मिरात और पीर का रोजा अपने तसलसल के साथ रखता है वो भी रख सकता है, उसके लिए भी इजाजत मौजूद है कि वो आखिरी 15 दिनों के अंदर रोजा रख सकता है। तो ये दो चीजें थी जो मैंने नुक्ते आपके सामने बयान किए। पहला नुक्ता कि शाबान के महीने के अंदर जो फजीलत हकीकत में मौजूद है, जो सही अहादीस से मिलती है, वो ये कि अल्लाह के रसूल इसमें रोजे बहुत ज्यादा रखा करते थे। तो ये हमारे लिए तालीम है। और दूसरे नंबर पर फरमाया कि जो अपने अंदर ज्यादा कमजोरी महसूस करता हो वो 15 शाबान के बाद रोजे ना रखे, ताकि वो रमजान के रोजों के अंदर उसके इस्तेमाल में किसी किस्म की कमी ना कर सके। क्योंकि जो इंसान जब रमजान का महीना आता है, एक तवानाई, एक जो इंसान के अंदर हेल्थी तौर पर इंसान का मजबूत और स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, ताकि वो इबादत का एक जो महीना अल्लाह ताला हमें अता करने वाले हैं वो हमारे लिए एक बड़ा ही बेहतरीन पैकेज आने वाला है, तो उससे वो अच्छे तरीके से अवेल कर सके, उससे फायदा उठा सके। उसके लिए हमें जरूरी है हम अपने आप को चुस्त रखें, तवाना रखें और शाबान के जो नफली रोजे हैं उनकी वजह से अपने आप को हम इतना कमजोर न कर ले। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तालीम ये दी है कि तुम 15 शाबान के बाद रोजे मत रखो। और इसके बाद तीसरी चीज जो इस महीने से खास जुड़ी हुई है, जरूरी नहीं इस महीने के साथ कि
लोगों के, खास तौर पर औरतों के जो रोजे रमजान में रह जाते हैं, उनको चाहिए कि वो इस शाबान के अंदर अंदर अपने पिछले महीने के जो रोजे रखते हैं उनकी कज़ाई दे लें, क्योंकि अगले रमजान के आने से पहले पहले आपको अपने पिछले रमजान के रोजों की कज़ाई देना जरूरी है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, काना यकूनु अलैया अस्सौमु मिन रमज़ान फमा अस्ततिउ अन अक़ज़िया इल्ला फी शअबान। फरमाया कि जो हमारे रोजे रमजान में मेरे रह जाया करते थे तो उनकी मैं कज़ाई जो है ये शाबान के महीने में दे देती थी, ताकि अगला रमजान आने से पहले पहले मेरे जो पिछले महीनों के रोजे हैं वो मुकम्मल हो चुके हो। तो ये तीसरा नुक्ता इस महीने के साथ खास हम इस तरीके से कर सकते हैं कि आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हमारी माँ जो है वो इस महीने के अंदर अपने पिछले रमजान के रोजों की कज़ा पूरी किया करती थी। और ये तीन चीजें जो इसकी फजीलत से सही मानों में हकीकत से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन इसके बाद वो चीजें जो आज हमारे माशरे के अंदर बिदआत और खराफात के साथ जुड़ी हुई हैं, और वो खास सारे रमज़ान शाबान के महीने को छोड़कर सिर्फ निस्फ शाबान यानी 15वीं रात और दिन के साथ सारी फजीलतें जोड़ते हैं, जो कि जिनकी कोई हकीकत नहीं है। मैं आपके सामने ऐसी अहादीस बयान करता हूँ जिनके अंदर निस्फ शाबान यानी कि 15वीं शाबान की फजीलत बयान हुई है, लेकिन वो सारी की सारी अहादीस ज़ईफ है, मनगढ़ंत है और बहुत ज्यादा ज़ईफ है। जो हमारे ऐसे उलमा हैं जो अहादीस की तखरीज पर काम करने वाले हैं, जो अस्मा व रिजाल पर काम करने वाले हैं, यानी कि जो अहादीस की सनद आती है अल्लाह के रसूल से, सहाबा ने बयान किया, सहाबा से ताबिईन ने, ताबिईन से तबा ताबिईन ने, तबा ताबिईन से आगे तबा उसके बाद असलाफ ने। तो जो इस तरीके से जो एक सिलसिला हर जमाने का चलता आता है कि उस्ताद शागिर्द का जो मामला होता है इसके अंदर सारों का ऑथेंटिक होना, सारों का सिका होना और झूठ से पाक होना, जब सारे के सारे इस तरह के लोग मिलते हैं तो वो हदीस सही होती है। लेकिन अगर किसी हदीस के अंदर भी ऐसा मामला आ जाए, किसी जमाने में कोई ऐसा झूठा शख्स लग जाए, कोई ऐसा शख्स उस हदीस की रिवायत के अंदर आ जाए, उसके रिजाल के अंदर आ जाए जो झूठा हो, जिसके बारे में उसकी जिंदगी के बारे में पढ़ा जाए तो उसमें से झूठ निकले कि उसने फलां जगह पर झूठ बोला था, फलां जगह पर झूठ बोला था, या इसने फलां काम किया था जो किसी की ऑथेंटिसिटी को, जिसके किसी काम की काबिलियत को खराब करता हो, तो उस शख्स की हदीस को ज़ईफ करार दिया जाता है। ये एक इस्लामी असूल है, शरीयत के असूल है जो मुहद्दिसीन ने अपना रखे हैं किसी भी हदीस के सही और ज़ईफ होने के लिए। तो हमारे लिए सही हदीस वो होती है जिसके अंदर सारे के सारे रिजाल जो है रिवायत करने वाले हैं वो सब के सब ऑथेंटिक हो, कोई उसके अंदर ऐसा शख्स मौजूद ना हो, या तो जिसका हाल मालूम ना हो कि वो कैसा शख्स था उसको भी छोड़ दिया जाता है, या जिसके बारे में पता हो कि वो झूठा शख्स है या ऐसा शख्स है जो सही हदीस बयान करने वाला नहीं है, तो उसकी बात को छोड़ दिया जाता है, उस हदीस को ज़ईफ करार दिया जाता है। ये एक असूल है, शरीयत के अंदर चलता है, मुहद्दिसीन में चलता है, इसके अंदर और कोई दूसरी राय मौजूद नहीं है, और सब लोग इसी मौज़ान पर हदीस के सही और ज़ईफ होने को तोलते हैं। इसके अंदर किसी भी किस्म का इख्तिलाफ मौजूद नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे लोगों के बारे में बयान फरमाया जो अपने पास से मन गढ़ंत बातों को अपने बड़ों के कहने पर, जिनका शरीयत से कोई खास ताल्लुक ना हो, अपना लेते हैं। उनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया, अम लहुम शुरका शरअू लहुम मिन अद-दीन मा लम यअज़म बिही अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं इन लोगों ने ऐसे शरीक अपने साथ जोड़ रखे हैं जो उनके लिए दीन के अंदर नई नई बातें निकाल कर लेकर आते हैं अल्लाह की इजाजत के बगैर, और वो उसको कबूल कर लेते हैं, उसको दीन का हिस्सा बना लेते हैं अपने सिर्फ और सिर्फ उन बड़ों के कहने पर जो ना नबी होते हैं, ना अल्लाह की तरफ से वही होती है, सिर्फ और सिर्फ उनकी राय होती है। वो गलत भी हो सकती है क्योंकि मासूम अनिल खता सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है, इसके अलावा कोई नहीं है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अम लहुम शुरका शरअू लहुम मिन अद-दीन मा लम यअज़म बिही अल्लाह। और उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक उसूल दिया है कि मन अहदस फी अमरिना हाज़ा मा लैसा फीही फहुवा रद्द। वो हदीस जो सही हो, ऑथेंटिक रिजाल के साथ हो, सारे रावी उसके सही हो, और वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में बताया हो, तो वो काम हमारे यहाँ काबिल कबूल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया। इसके अलावा जो मर्जी काम हो, ज़ाहिरी तौर पर जितना अच्छा नजर आता हो, और इसी तरीके से वो नेक कितना ही नेक नीयती पर मबनी अमल हो, लेकिन अगर वो सही अहादीस से या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई इबादत या बताई हुई तालीमात में से नहीं है, तो वो जितना मर्जी नेकी का काम हो वो अल्लाह उसके रसूल के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। कल ही मैं एक वीडियो देख रहा था जिसके अंदर वो लोग, ऐसे लोग जो ये निस्फ शाबान की बड़ी फजीलतें बयान कर रहे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ ज़ईफ अहादीस है, और उसके अंदर वो ब्लैकमेलिंग ऐसे कर रहे थे कि एक दिन
लेकिन अगर लोग मस्जिद में इकट्ठे हो ही रहे हैं तो आप क्यों उनको बिदअत के नाम पर मना करते हैं? आप क्यों उनको बिदअत के नाम पर मस्जिद आने से रोकते हैं? मेरे भाई, मेरी बात इसको समझ लीजिए, बिदअत एक ऐसी चीज है, वो नेकी के नाम पर हो, अगर उसके अंदर जितना मर्जी ज़ाहिरी तौर पर अच्छा काम नजर आता हो, उसका ना करना ज्यादा बेहतर है उस काम के कर लेने से जो बिदअत हो, जिसमें शरीयत का हुक्म मौजूद ना हो, इसके अंदर ना करना ज्यादा बेहतर है। क्योंकि बिदअत के बारे में अल्लाह ने फरमाया है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया है, कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। ज़ाहिरी तौर पर जितना मर्जी अच्छा नेकी का काम हो, अगर वो बिदअत है, नई इजाद है, शरीयत ने उसके बारे में कोई तालीम नहीं दी, तो वो ज़लालत है, गुमराही है। व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, और फरमाया हर गुमराही जो है इंसान को जहन्नुम की तरफ लेके जाने वाली। तो ऐसी ब्लैक मेलिंग करना कि ये बात कहना कि अगर किसी रात लोग मस्जिद में इकट्ठे हो ही रहे हैं तो आप होने न दें, आप बिदअत के नाम पर उनको मस्जिद जाने से रोकते क्यों हैं? तो रोकना जरूरी है, क्योंकि वो बिदअत है, शरीयत ने उसकी इजाजत नहीं दी है, और ऐसे काम को ना करना ज्यादा बेहतर है। चाहे कि ऐसे काम को किया जाए जिसमें शरीयत में तालीमात मौजूद नहीं है। इसी तरीके से बहुत सी अहादीस जो बयान की जाती है इसकी तफसील के अंदर या इसकी फजीलत के अंदर, इस रात की या इस दिन के, वो सब के सब जैसे मैंने आपको बताया ज़ईफ है, और उसके अंदर जितने भी रावी आए हैं कोई मजहूलुल हाल है, जिसके हाल का मालूम नहीं है, और जो मुहद्दिसीन हैं उन्होंने उसको ज़ईफ लिखा है। तिर्मिज़ी के अंदर एक दो रिवायात आती है, इमाम तिर्मिज़ी खुद उसको ज़ईफ लिखते हैं। तो जिसको इमाम तिर्मिज़ी जो उसको बयान करने वाले हैं, वो जब खुद उसको ज़ईफ लिख रहे हैं तो हम कैसे उसको सही मानकर उस पर अपना अमल बना सकते हैं? तो जरूरत इस अमर की है, हम इस चीज को समझे, इस चीज को परखें, जो चीज शरीयत ने सही हदीस से हमें मिलती है हम उसको माने, ना कि सुनी सुनाई बातों पर अमल करके हम अपने दीन को खराब करें, अपने ईमान को खराब करें, और ऐसे काम करें जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी का बाइस बनते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की नाराजगी का बाइस बनते हैं, चाहे ज़ाहिरी तौर पर कितना ही अच्छा अमल नजर आता हो। क्योंकि बहुत सी ऐसी रिवायात, बहुत से ऐसे सबूत हमें मिलते हैं जिसके अंदर ऐसे दलाइल मौजूद हैं कि सहाबा इकराम, किसी एक शख्स ने अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक ऐसे शख्स को जिसने ईद की नमाज से पहले 2 रकात पढ़ना शुरू की, उसको मना किया, तो वो कहने लगा आगे से, मैं कोई नेकी का काम ही कर रहा हूँ, कोई गुनाह का काम तो नहीं कर रहा। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसको मना किया। क्यों मना किया? फरमाया कि ये शरीयत की तालीम नहीं है, शरीयत ने इसकी इजाजत नहीं दी, शरीयत ने हमें इसका हुक्म नहीं दिया। तो ऐसा काम जो शरीयत ने हमें उसका हुक्म ना दिया हो, जिन ज़ाहिरी तौर पर जितना भी अच्छा नजर आए, वो काबिल कबूल नहीं है, बल्कि वो ज़लालत और गुमराही है। तो इसके अंदर जितने भी रिवायात बयान की जाती है और जिन चीजों से ये इस्तेमाल करते हैं, वो सब के सब ज़ईफ और मनगढ़ंत है। और इसी तरीके से हमारे जितने भी असलाफ हैं, सबने इस दिन के बारे में जितनी हदीस आई है, सब के बारे में अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। उन्होंने कहा है कि इसमें मौजूद सारी हदीस ज़ईफ है, इसकी कोई तालीमात शरीयत में सही हदीस से मौजूद नहीं है। तो हमें चाहिए हम वो काम करें जिसकी शरीयत ने हमें हुक्म दिया है, जो सही हदीस से जिसका हमें हुक्म मिलता है। क्योंकि ताकि हम अपना वक्त भी लगाएं, अपनी जान खपाएं, अपना सब कुछ लगाएं, हमें उसका फायदा मिलना चाहिए। ये ना हो हम अपनी जान भी खपा दें, अपना माल भी लगा दें और अपना वक्त भी लगा दें, लेकिन उसके बदले में हमें अल्लाह की नाराजगी मिले। ये कोई अच्छा सौदा नहीं है। ज़ाहिरी तौर पर अच्छी चीज नजर आने वाली हर चीज अच्छी नहीं होती, अच्छी वही होती है जिसके ऊपर तस्दीक मौजूद हो, वो किसी भी चीज की तस्दीक हो, सोने के अंदर हो, बिजनेस के अंदर हो, इसी तरीके से शरीयत की कोई मामला हो, ज़ाहिरी तौर पर नजर आने वाला अच्छा हर चमकीली चीज जैसे कहा जाता है सोना नहीं होती, और इसी तरीके से हर अच्छी चीज ज़ाहिरी तौर पर नजर आने वाली अच्छी नहीं होती। अच्छी चीज वही होती है जिसकी तस्दीक मौजूद हो, जिसको ऑथेंटिक करार दिया गया हो, वही चीज काबिल कबूल और वही चीज अच्छी है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इसको समझने की तौफीक अता फरमाए और हमें